Good morning, dear students. Good morning, sir. All students are appearing very much energetic. Shabash. Let's take the benefit of your energy and our today's companionship union in the form of gathering new information. Shabash. Everybody, please write down the date as well as topic name so that without wasting a single minute, we should start. Your attention. It is 12th of the month, 5th month, and the teacher name should also be known to the students. Subject section should be written, and the topic in detail is reflection. Everybody, please write down reflection. First of all, I am writing certain symbols which will be useful to understand this article completely. The symbols and their meanings. Write down the heading. Symbols and meanings. Today, these two angles should be known to you. Angle of incidence and of refraction respectively. Respectively. That means जो बाद में लिखा है R, that is angle of reflection. What should be more known to my students? This mu. Mu is either written. This is the Greek letter mu. Either we use this symbol or we use M. Both symbols are used. And the meaning of this is refractive index of refraction. I am adding something more here. Look here. If it is written like this, here it is 1, here it is 2. So you will say refractive index of two medium with respect to 1. और इसमें ऐसे भी लिख देते हैं लोग 2, 1. So this is refractive index of refraction of medium 2 with respect to short में you can also write WRT medium 2 medium 1. Look here, this should be known to you. Let's proceed further. This angle is known as delta. Delta is the Greek letter. You should all be clear about it. Angle of deviation. Deviation. Further, you should be clear about this kind of structure made up of glass slab. Another symbol is used here, that is C. C stands for velocity of light in vacuum, or you can say in air.
can say vacuum is also called free space. This value should be known to you. 3 into 10 raised to power 8 meter per second. One class has just joined. For that class, I would like to tell, I am just telling the symbols. Actually, my method is this. The why I am telling, otherwise I would have told these during the explanation of article also. Because it will save time there. And secondly, the students who are little bit late to join, they can also incorporate. The late joining class, let me tell you, I have just told that what are the symbols related to this article, what are their meanings, you all should know. Please note down as quickly as possible. Let's join it and see. Then you use the symbol V. This is your velocity of light, velocity of light in any other medium. I mean to say, not vacuum. वैक्यूम को छोड़कर किसी और मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक और इसमें यूज होएगा बेटे, एंगल जी, एंगल ऑफ ग्लांस बोलते हैं. You can also call it glancing angle, glancing angle. एक इसमें और वर्ड यूज होएगा. अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें, टर्मिनोलॉजी कौन कौन से वर्ड इसमें ज्यादा यूज होंगे. एक यूज होएगा बेटा नॉर्मल, एक कौन सा यूज होएगा रेयरर, एक कौन सा यूज होएगा डेंसर, एक कौन सा यूज होएगा TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. शाबाश, ये मैंने आपका फास्ट से फास्ट लिख दिया और सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए. जो बच्चे जो लेट भी आए हैं कम से कम उनको सारे पढ़ जरूर देने चाहिए. So now we are proceeding to the main section of the article. So I guess most of the students have noted. जिन्होंने नहीं भी नोट करा बेटे एक बार पढ़ लो सारा, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट. एक बार सारा पढ़ लो फिर मेमोरी से लिखना. शाबाश. 10th C पर्टिकुलरली सारा एक बार गो थ्रू बेटे, और जब तक मैं इसको इरेज करता हूं आप मेमोरी से लिखो. शाबाश. अब मैं मेन आर्टिकल का जब तक फिगर बनाऊंगा तब तक आप इसको लिख लो. राइट राइट, आई एम गोइंग.
Just look what the teacher has mentioned. Look here, bete. I have drawn a refracting edge. मतलब वो किनारा जिसके अक्रॉस रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगी, और इस एज के एक तरफ आई हैव ड्रॉन रेयर मीडियम एंड ऑन द अदर साइड आई हैव मेंशन्ड डेंसर मीडियम. Now, first of all, it should be clear to my students, sir, what is meant by rarer medium and what is meant by denser medium. बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं जिनकी डेंसिटी कम है वो रेयर मीडियम. रॉन्ग. फिजिकल डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, उसका इससे कोई लेना देना नहीं. ऑप्टिक्स के चैप्टर में, रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में, रिफ्रैक्शन के आर्टिकल में रेयर मीडियम का मतलब ये होता है जिसमें लाइट कंपैरेटिवली फास्टर वेलोसिटी से जाए, और डेंसर मीडियम का मतलब ये होता है जिसमें लाइट तुलनात्मक दृष्टि से कम गति से जाए. जैसे हवा में लाइट ज्यादा स्पीड से जाती है, पानी में कम, तो आप कह सकते हो सर पानी में कम वेलोसिटी से जाती है, इसका मतलब है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो आप लिख सकते हो साइड पे, velocity of light in rarer medium is greater than velocity of light in denser medium. This is what the definition is. Denser medium में light की velocity कम होगी, rarer medium में velocity ज्यादा. ओके, अब ध्यान से सुनो बेटे. मैंने यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट लिया. सोर्स ऑफ लाइट इधर भी ले सकता हूं, इधर भी ले सकता हूं. तो बच्चा कहेगा सर यहां पर आपने सोर्स ऑफ लाइट रेयर मीडियम में लिया है, यहां पर डेंसर में लिया. बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने दो टाइप्स की रिफ्लेक्शन समझानी है आपको, साइमल्टेनियसली चल रहा हूं. सोर्स ऑफ लाइट से मैंने लाइट को थ्रो करा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. याद रहे बेटे, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. लाइट रे ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. इसकी इस प्रॉपर्टी को आपने 8th क्लास में पढ़ा था. एनीबॉडी हु कैन टेल मी the property of the ray of light to travel in the straight line is known as? है जी, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ बहुत अच्छे बहुत अच्छे. रेक्टिलिनियर और प्रोपेगेशन का मतलब होता है एडवांसमेंट, आगे बढ़ना. शाबाश, बहुत अच्छा वर्ड बोला मेरे बच्चों ने, अच्छे से मेरे को बताया. सर हम बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. 3 क्लासों में से 2 सेक्शंस के बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, एक सेक्शन नहीं दे सका. तो जहां पर ये लाइट गिरती है ना बेटे, उस पॉइंट को P से डेजिग्नेट करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. लाइक मैं इधर भी थ्रो कर सकती हूँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. बच्चे बोलेगा सर यहां पर ये लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर, यहां बोलेगा रेयर टू डेंसर. बिल्कुल सही. अब इन दोनों रेज ऑफ लाइट ने जो भी एंगल, ये मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, जो भी एंगल रिफ्रैक्टिंग एज के साथ बना रखा है, रिफ्रैक्टिंग एज के साथ, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? रिफ्रैक्टिंग एज के साथ बने हुए एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांस. सभी बच्चे लिखो, एंगल ऑफ ग्लांस. फिर मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करा. नॉर्मल क्या चीज होती है बेटे? जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसीलिए नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं. देखो ये 90 डिग्री लग रहा है एंगल, क्योंकि व्हाइट लाइन हॉरिजॉन्टल है और पिंक लाइन जो मैंने ड्रा करी नॉर्मल वाली वो वर्टिकल है. तो नॉर्मल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वो आपस में 90 डिग्री एंगल पे होती है. तो ऐसे ही मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रा करूँ. देखो 90 डिग्री लग रहा है प्रॉपर. अब ध्यान से सुनो,
साइंटिस्टों ने ऐसा महसूस करा और ऑब्जर्व करा कि रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेटे वो अपना असली रास्ता, ये वाला जो था जिस पे टीचर येलो डॉट लगा रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन में, इसको छोड़ देती है, एक्सपेक्टेड पाथ को छोड़ देती है। नॉन साइंस पर्सन तो यही सोचेगा यहां खड़ा होकर स्ट्रेट लाइन में लाइट आएगी। लेकिन बेटे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो एक प्रोसेस टेक प्लेस करती है, उसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसके मुताबिक ये लाइट अपना डॉटेड पाथ छोड़कर पिंक कलर वाले नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। देखो बच्चा बोलेगा सर ये डॉटेड पाथ था ना इसका एक्सपेक्टेड पाथ, आई विल से यस। तो ये इतने एंगल से झुकेगी ना सर, आई विल से यस। सर इस एंगल को फिर क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, कितने एंगल से मुड़गी, डेविएट मैंने मोड़ना। और जो लाइट हमने थ्रो करी थी स्ट्रेट लाइन में उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रेक्टेड रे। तो लर्निंग पॉइंट क्या है? whenever ray of light goes from rarer to denser it bends towards normal। लेकिन जब लाइट इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर जाती है बेटे तो वो अपना डॉटेड पाथ छोड़कर नॉर्मल से परे हट जाएगी, यानी इधर से ऐसे कट जाएगी, ये वाली लाइन, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो इसीलिए दो टाइप रिफ्लेक्शन की, दो टाइप्स होगी, दिस टाइप फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड दिस टाइप फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और डॉटेड उसका एक्सपेक्टेड पाथ था, असली में लाइट चलेगी इधर को अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, कितने एंगल से मुड़गी, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे, डेल्टा। देखो दोनों डायग्राम साइमल्टेनियसली करा रहा हूं ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए, अच्छे से समझ सको। फिर एक और एंगल जिसको टीचर रेड ब्राउन कलर से मेंशन कर रहे हैं, वो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, दिस वन, जिसको मैंने डबल लाइन से रिप्रेजेंट करा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, मींस एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। और इधर भी देखो, ध्यान से देखना, इधर वाला मुश्किल है थोड़ा। एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चे बोलेगा सर जब डेंसर मीडियम में आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेल्टा को बीच में समा नहीं रहा, लेकिन जब अपने रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर ही एंगल ऑफ डेविएशन बीच में समा गया। आई विल से यस, आर का ही पार्ट है डेल्टा, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेल्टा अलग है। बेटे नो म्यूचुअल टॉक, सेक्शन ए। मैम सेक्शन ए जरा कुछ देखना, जरा ये बच्चे इनडिसिप्लिन कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटे। सर हमारी सर स्कूल में सर सेरेमनी है सर, परेड के लिए हम जा सकते हैं? कितने बच्चे हैं? सर थोड़े ही है सर, ओनली बॉयज। अब बेटे अब बुलाया तो जाना ही पड़ेगा, तो प्रिंसिपल के ऑर्डर्स होंगे ना, प्रिंसिपल के ऑर्डर से है ना ये। यस हाँ फिर तो जाना ही पड़ेगा, जाओ। सर। ओके सर। स्टूडेंट्स जाने से पहले इसको कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में जरूर आएगा। और YouTube पर हमारा लेक्चर अपलोड हो जाता है, आप उसमें रिफ्लेक्शन देख सकते हो, मैं ही पढ़ा रहा हूँ उस पर। ओके ध्यान से सुन लो। अब बेटे इसके अंदर ध्यान से सुनो फटाफट, शाबाश। जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो मैंने आपको बताया ही नहीं अभी। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, टीचर उसको व्हाइट कलर से मेंशन कर रहे हैं, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको व्हाइट कलर से मेंशन करा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इन दोनों एंगलों को ऐड कर दूं, आर और डेल्टा को, आर और डेल्टा डेल्टा को दोनों को ऐड कर दूं, तो ये वाला व्हाइट लाइन
उस व्हाइट लाइन वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो याद रखना आपने, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम वाली रिफ्रैक्शन शो कर रही हो, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और डेल्टा के बराबर आएगा, टोटल के बराबर, आर प्लस डेल्टा। नोट करो फटाफट। लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए, तब आर और डेल्टा के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, डिफरेंस के बराबर। देखो व्हाइट वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट यहां पर बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर। तो वर्टिकली अपोजिट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्राउन वाले एंगल में से येलो वाला माइनस करना पड़ेगा। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर में से एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा माइनस करना पड़ेगा, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। और ये फार्मूला आपने तब याद रखना है जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। याद कर लो दोनों फार्मूले पहले तो, बहुत ही फायदेमंद है एग्जाम की नजर से। दोनों के अंदर टीचर ने क्या क्या रूल लगाया, मैथ के अंदर आपने पढ़ा हुआ है बेटे, ये देखो दो लाइनें ऐसी हों और दोनों के ये जो शेडेड एंगल टीचर ने दिखाए, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये देखो दोनों शेडेड एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। इस पॉइंट का मैंने बेनिफिट लिया, मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी अगर मैं यहाँ थीटा डाल दूं, यहाँ थीटा डैश डाल दूं, तो मैथ का पॉइंट कहता है थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश। थीटा भी एक ग्रीक लेटर है। दूसरी बात याद रखना, दोनों ही प्रोसेसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लांस, ग्लांस देख लो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है। जल्दी से नोट कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास टोटल 90 डिग्री। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे, तो मैं कहूंगा बेटे देखो, इस ग्रीन कलर में व्हाइट वाला एंगल ऐड करके देखो डायग्राम में। ग्रीन कलर कौन सा है, एंगल ऑफ ग्लास, व्हाइट कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे ही दोनों को ऐड करते हैं तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री बन जाता है। इसी तरह से इधर ग्रीन और व्हाइट दोनों को ऐड करा तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री बन गया। गॉट इट। कुछ भी पोर्शन आपका डायग्राम में बचना नहीं चाहिए, वरना मार्क्स कट जाएंगे। एक और बात याद रखनी है शाबाश, अगर मेरे बच्चों से पूछ लें कि ये जो रिफ्रैक्शन है ये हुई ही क्यों है, इसका वाई क्या है, तो आपने जवाब देना है 10th क्लास के हिसाब से। चाहे ये वाली रिफ्रैक्शन चाहे ये रिफ्रैक्शन, दोनों का एक ही कारण लिखना है। वो आपने लिखना है कि लाइट की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ये इसका रूट कॉज है। लिख लो सभी बच्चे, रिफ्लेक्शन का वर्ड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। ये वाई ऑफ रिफ्लेक्शन 2 नंबर का पूछ लेते हैं। अब आगे सुनो बेटे, साइंटिस्टों ने एक टर्म बना रखी है, योर अटेंशन, साइंटिस्टों ने एक टर्म बना रखी है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या करता है, वो ये बताता है कि रिफ्रैक्शन ज्यादा हुई है या कम हुई है। फिर से सुनो, कौन सी टर्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बताता है, रिफ्रैक्शन ज्यादा हुई है या कम। सर डायग्राम से कैसे पता लगेगा कि रिफ्रैक्शन ज्यादा हुई कि कम। जितना ये डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होगी एंगल ऑफ डेविएशन की, जितना डेल्टा ज्यादा बड़ा होगा उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। लिख लेना चाहिए साइड पे कहीं ना कहीं, मोर दी डेल्टा
means more refraction. More delta means more reflection. तो साइंटिस्टों ने एक टर्म बनाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने देखा होगा आपकी जो प्रैक्टिकल की नोटबुक होती है उसके फ्रंट पे इंडेक्स बना होता है। इंडेक्स मैंने जो बताती है कौन सी चीज कहां पर है कैसे है। तो इंडेक्स का मतलब होता है किसका इंडेक्स? रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन ज्यादा हुई या कम हुई उसको बताने वाला पैरामीटर। और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है ना बेटे वो ये होता है म्यू। इसको एन से भी लिख देते हैं। अब यहां फर्स्ट वाले केस में देखते हैं। फर्स्ट वाले केस में यहां पर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? ध्यान से सुनना बेटे। जिस मीडियम में लाइट बाद में एंटर करे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी यहां पर किस में एंटर करिए बाद में? डेंसर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कौन सा मीडियम? जहां से लाइट आई है। लाइट कहां से आई है? रेयर मीडियम। उसको यहां लिखना। आप बोलोगे सर दो दो सिंबल क्यों लिखे हैं? दोनों सिंबल चलते हैं। कोई किताब ये यूज करती है कोई ये यूज करती है। वर्ल्ड वाइड दोनों चलते हैं। इसलिए मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं तो मैंने दोनों लिखे। तो इसका मतलब बच्चा बोलेगा सर बेसिकली लाइट रेयरर से डेंसर में आई ऐसे आपको बोल रहे। आई सेड यस। जितना ये ज्यादा होएगा इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ये ज्यादा होएगा उतनी ही रिफ्रैक्शन भी ज्यादा बोली जाएगी। उसका मतलब है उतनी ही लाइट ये अपने डॉटेड पाथ से ज्यादा डेविएट हो जाएगी दूसरे मीडियम में एंटर करते वक्त। फर्स्ट मीडियम से सेकंड में एंटर करते हुए अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से जितना ज्यादा बड़े डेल्टा एंगल से ये लाइट हट जाती है उतना ही म्यू ज्यादा होता है। ये ग्रीक लेटर है इसको म्यू बोलते हैं। इसको निकालने के लिए साइंटिस्टों ने दो तरीके बताए। दो तरीके ध्यान से सुन लो। वो दो तरीके कौन से हैं? दोनों सिलेबस में आपके टाइम। एक ये स्लिप ये बेटे लाइट जिस मीडियम से आई है वहां पर लाइट की वेलोसिटी क्या थी? ए हम इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट जहां से आई थी रेयरर मीडियम डिवाइडेड बाय जहां लाइट गई। वेलोसिटी ऑफ लाइट डेंसर मीडियम। देखो जहां से आई वो न्यूमरेटर जहां गई वो डिनोमिनेटर। तो बच्चा मेरे को बोलेगा सर ये जो आपने रेशो लिखी है क्या यही इसकी डेफिनेशन है? आंसर इज यस। अगर आप इसको लैंग्वेज बना के लिख दो तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बन जाएगी। अगर आप इसको इंग्लिश के सेंटेंस में लिख लो। सर कैसे लिखेंगे? ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ बीच में डिवाइड है तो रेशियो बोलेंगे रेशियो ऑफ velocity of light in rarer medium to the velocity of light in denser medium। लेकिन सर अगर इधर लिखना हो दूसरी वाली रिफ्रैक्शन में तो क्या करेंगे? तब मैं कहूंगा बेटे लिखने में म्यू आएगा बाद में किस में गई? रेयरर में। तो बाद में अगर रेयरर मीडियम में गई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर आएगा ऐसे। और इसको ऐसे भी ले सकते हैं ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर। सर इसमें क्या रेशो बनेगी? इसमें उल्टी बनेगी बच्चे। लाइट गई कहां से? डेंसर से। बाद में कहां गई? रेयरर में। तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ये बनेगी। और दोनों ही केसेस में आपने एक चीज नोट करी बेटे जब वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो दो ऊपर नीचे वेलोसिटी की यूनिट तो सेम ही होती है। तो जो भी उसकी मीटर पर सेकंड यूनिट ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे वो कट हो जाएगी।
इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कभी भी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस। दूसरी बात, दूसरी बात बेटे शाबाश, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर आपने रेयरर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर निकाला है तो उसका आंसर लेस देन 1 आता है। अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर निकाला है तो उसका आंसर ग्रेटर देन 1। एक बच्चे कहते सर आपने कैसे कह दिया ग्रेटर देन 1? मैं कहूंगा बेटे देखो, टीचर ने शुरू में ही बताया था आपको, ये देखो कॉर्नर में क्या बताया था, रेयरर में वेलोसिटी लाइट की ज्यादा, डेंसर में कम, रेयरर में ज्यादा, डेंसर में कम। तो इसका मतलब इस रेशियो को देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर डिवाइडेड बाय डेंसर, यानी लार्जर थिंग इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर। लार्जर को जब स्मॉलर से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा, उसमें अपोजिट है, स्मॉलर को लार्जर से डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1। गॉट इट? एक चीज और देखो शाबाश, टीचर ने आपको बोला था कि साइंटिस्टों ने इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के 2 मेथड बताए, अभी तो मैंने एक ही बताया, अब दूसरा भी ध्यान से सुन लो। दूसरा दूसरा मेथड जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम था साइंटिस्ट का स्नेल, SNELL, स्नेल। इसलिए उसने जो फार्मूला हमें दिया उसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। सर वो स्नेल्स लॉ होता क्या है? लो, मैं व्हाइट कलर से उसको लिख के दिखाता हूँ आपको, इतनी जगह सफिशियंट है मेरे लिए उसको लिखने के लिए। किसको? स्नेल्स लॉ को। इधर भी मैं लिख दूंगा इस बॉक्स के अंदर, देखते हैं क्या है स्नेल। स्नेल्स लॉ कहता है अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर निकालना है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, तो आप क्या करो, एक डिवाइड का निशान बनाओ, ऊपर मैथ का साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो और नीचे भी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लो, लेकिन आप यहां पर लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयरर मीडियम टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम, ये रेशियो। कोई बच्चे कहते हैं ये साइन क्या होता है सर? अगर आपको मैथ के टीचर ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है तो वो आपको बता चुके होंगे, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं कराई तो बताने वाले होंगे, 1-2 दिनों में बता देंगे। तो ये फार्मूला अपने याद करें। इधर कैसे लिखेंगे? इधर ऐसे लिखेंगे, आप कहोगे सर इसमें लाइट बाद में रेयरर में गई, तो मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, यहाँ डिवाइड का निशान, यहाँ साइन ही लगेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस, इंसिडेंस कौन से मीडियम में है? डेंसर में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, और ये किसमें है? आर वाला ब्राउन वाला कलर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम में। शाबाश, जिस बच्चे ने ये पूरा चार्ट नोट कर लिया बेटे, आई अश्योर यू कि उसके कुछ ना कुछ मार्क्स तो पक्के हो गए, गारंटी है, अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया इतना। और बीच में मैंने ये लाइन लगा दी ग्रीन कलर की, दोनों रिफ्रैक्शन टाइप 1 और टाइप 2 कंपैरेटिवली स्टडी करें, 2 टाइप्स। और बताना चाहूंगा इंसिडेंट रे येलो लाइन, पिंक लाइन नॉर्मल, और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है, ऑल लाई इन द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड, प्लेन में लाई, लिख लेना ये भी कहीं ना कहीं। इंसिडेंट रे लिख लो बेटे, ये भी एक लॉ होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल द 3 लाई इन द सेम प्लेन, दोनों दोनों टाइप की रिफ्लेक्शन। अब एक ऐसी चीज पढ़ते हैं बेटे जिसमें, जिस आर्टिकल में ये दोनों रिफ्रैक्शंस एक ही आर्टिकल में आएंगी और वो हमारे सिलेबस में,
योर अटेंशन, टीचर क्या कह रहा है, दोनों रिफ्रैक्शन एक ही सिंगल आर्टिकल में आएंगी और वो 10th क्लास की एनसीईआरटी के सिलेबस में है। प्रैक्टिकल में भी है, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी आर्टिकल है, उसको हम पढ़ते हैं। शाबाश, मैं इसको इरेज करने लगा हूं। आई एम गोइंग टू इरेज इट। अच्छे से नोट कर लो। लो बेटा, राइट डाउन सभी बच्चे, रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, थ्रू ग्लास स्लैब। पहले मेरे को ये बताओ बेटे, मेरे पास आपके नामों की लिस्ट आ गई है। ये एक बच्चा है, अर्शप्रीत कौर, 10th, अर्शप्रीत कौर। बेटे आपको माइक में आपने बताना है, बिना हेजिटेट करे, बिना डरे। आपने ये बताया टीचर ने अभी तक जितना समझाया आपको समझ आया? यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। बैठ जाओ बस। अब मेरे को एक बच्चा है, हरमन सिंह, हरमन सिंह, 10th, चला गया। और मार्च पास के लिए गए हुए हैं। हाँ, गुड गुड। लवलीन कौर, 10th, ये कौन सा प्यारा सा बच्चा है, लवलीन कौर। बेटे आप यस सर। एक बताना है, जिस सिंबल को टीचर ने, जिस सिंबल से टीचर ने एंगल ऑफ डेविएशन लिखा था, वो सिंबल कौन सा था, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेल्टा। हाँ, बस उसको डेल्टा बोल रहा था, बहुत अच्छा। डेल्टा इज मेंशनिंग एंगल ऑफ डेविएशन। देखा आपने बेटे, कितने बच्चे ध्यान से सुनते हैं। अभी तो उन्होंने सुना है लेक्चर और अभी याद भी कर लिया। वेरी नाइस, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं टीचर ने ये ग्लास स्लैब दिखाया अपने बच्चों को। देखो ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब का फ्रंट व्यू दिखा दिया, ग्लास स्लैब का फ्रंट व्यू। वैसे ये ग्लास स्लैब कैसे दिखेगी, इस तरह से दिखेगी, थोड़ी सी मोटी और अदरवाइज रेक्टेंगुलर। इस ग्लास स्लैब की यूजुअली, ये ग्लास स्लैब है तो नेचुरली किसकी बनी हुई है, कांच की बनी हुई। तो ये डेंसर मीडियम होगा। आउटसाइड पर हमने मान लो हवा है, रेयर मीडियम ले लिया, ऊपर भी नीचे भी सेम रेयर मीडियम हो गया। अब मैं इस ग्लास स्लैब के ऊपर एक पॉइंट पर सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट रे फेंकूंगा, सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट, सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट रे फेंक दिया। कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। ध्यान से सुनना बेटे, सिलेबस में है ये, एरो जरूर लिखाना है। आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो साइड पे आई आर का मतलब लिख के बताना टीचर को, इंसिडेंट रे। आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपने पेपर में टीचर को बताना है कि ये एंगल ऑफ ग्लास है। आपने यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर दिया और टीचर को एग्जाम में बताना है कि ब्राउन कलर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आपको बताना है कि येलो डॉटेड लाइन नॉर्मल है। आपको बताना है कि नॉर्मल जो होता है वो रिफ्रैक्टिंग एज के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
अब आगे देखो बेटे, मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटे अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो ये लाइट किधर को जाती? योर अटेंशन। बच्चा कहेगा सर अगर ग्लास स्लैब ना होती तो कोई भी रिफ्रैक्शन ना होती और ये स्ट्रेट लाइन में निकल जाती रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को फॉलो करते हुए, ऐसे चले जाती है आपकी। आप लोग स्केल यूज करना। मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर लाइट ये ग्लास स्लैब ना होती, कोई भी रिफ्लेक्शन ना होती, तो ये लाइट ऐसे निकल जाती। पर रियलिटी में ऐसा होगा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको टीचर ने अभी अभी सिखाया कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो, ये येलो कलर वाला नॉर्मल है, उसकी तरफ ये लाइट बेंड हो जाती है, ये होगी रिफ्लेक्शन। ये लो बेंड कर दी। तो बच्चा कहेगा सर आपने इतना एंगल ऑफ डेविएशन दिखा दिया ना यहाँ पर। मैं कहूंगा यस, डेल्टा। बच्चा कहेगा सर ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, इसने इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, आपने हमें बताया था कि वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, क्या आपने इसीलिए रेड कलर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शो करा? आई विल से यस। आर का मतलब रेड कलर वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये कौन सी रिफ्रैक्शन होगी? रेयर टू डेंसर मीडियम। लेकिन बेटे अब गौर से देखो, जब ये लाइट ने यहां टकराया, यहां पर जहां पर टीचर मार्क लगा रहा है, यहां लाइट डेंसर से दोबारा रेयरर में जाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यहां पर रिफ्रैक्शन की दूसरी टाइप लगते हैं। यहाँ क्या था? रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। और यहाँ क्या है? डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हम यहाँ पर पहले नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये मैंने आपको दिखाया नॉर्मल येलो कलर से। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री एंगल बना। ठीक है, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला कलर जो टीचर पिंक कलर से दिखा रहा है, नॉर्मल के साथ आई डैश, इसको डैश लगा देते। और ये वाला एंगल कौन सा है बेटे? ये रिफ्रैक्टिंग एज के साथ बना है, जी डैश, सेकेंड एंगल ऑफ ग्लास। ये एंगल ऑफ ग्लास अलग है, येलो वाला अलग है, पिंक वाला अलग है। अब बच्चा बोलेगा सर होएगा क्या यहाँ पर? टीचर उसको बोलेगा क्या सिखाया था बेटे, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए तो क्या जाती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो वो लाइट, व्हाइट कलर वाली लाइट बेटे, वो ऐसे निकलेगी, देखो। देखो अवे होगी। लेट मी रीड राइट। थोड़ा सा बेंडिंग हो गई है क्योंकि आफ्टर ऑल हम हाथ से ड्रा करते हैं। फिर से ड्रा करते हैं। ये देखो, ये लाइट, ये जो डॉटेड वाली लाइट होती है ना बेटे, उसके पैरेलल हो जाती है। ये दोनों लाइटें आपस में पैरेलल होती हैं। और होंगी तब पैरेलल अगर ये रेयर मीडियम आर डैश वाला रेयर मीडियम और आर वाला रेयर मीडियम सेम हो। जैसे हवा कांच हवा, या फिर पानी कांच पानी, ऐसे होना चाहिए। दोनों मीडियम, ऊपर वाला रेयर मीडियम नीचे वाला रेयर मीडियम सेम होंगे, तब ये दोनों लाइटें पैरेलल होंगी। यहां पर हमने सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना देना है, आर डैश। और यहां पर आपने ग्लास स्लैब की थिकनेस को दिखाना है, टी। टी के सामने लिखना थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। खुद से लिखो, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कि कितनी वाइड हमने ली है, विड्थ कितनी। और एक बात बताना, छोटी सी पॉइंट रह गया इसमें बेटे, छोटा सा। ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन देखो, ऐसे पैरेलल लाइन जा रही है, एक ये डॉटेड।
दोनों में ये वाला जो परपेंडिकुलर गैप होएगा, ये वाला यहाँ पर, जिसको टीचर ने यहाँ पर येलो कलर से मेंशन करा, देखो ये वाला, इसी को मैंने यहाँ दिखाया येलो। ये वाला जो डिस्टेंस होता है, इसको डी से लिखते हैं, डी से। डी के पैर में छोटा सा एल भी डालते हैं, छोटा सा एल, डी एल। इसका मतलब होता है दोनों पैरेलल लाइनों में आपस में कितना गैप है, और टर्मिनोलॉजी वाइज इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन लेटरल शिफ्ट। मैं बताना चाहूंगा, जितना टी ज्यादा होता है, टी थिकनेस ऑफ द ग्लास है, उतना ही लेटरल शिफ्ट भी ज्यादा होता है। जितना टी ज्यादा होगा उतना लेटरल शिफ्ट। अब आज के लेक्चर की लास्ट बात करते हैं हम। दो बातें करनी है, सिर्फ दो बातें। एक बात करनी है, ध्यान से सुनना बेटे, ये इस आर्टिकल से हटके है। कौन सी बात? कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, रेयरर से डेंसर में, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल झुकेगी, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर कहा जाएगा। टीचर ने इसका क्या नाम बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका बताया बेटे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर बताया। लेकिन यहां पर बस एक खास बात बतानी है, लास्ट बात, उसके बाद ये लेक्चर ओवर है। कौन सा? इन केस दिस रेयरर मीडियम इज वैक्यूम, वैक्यूम मींस फ्री स्पेस, यहां पर हवा भी नहीं होनी चाहिए बेटे। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस है, आल्सो कॉल्ड वैक्यूम, तब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्मिनोलॉजी में, नेम में एक हल्का सा चेंज आएगा, और तब आपने यहां पर एब्सोल्यूट वर्ड लगाना। एब्सोल्यूट यानी म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर विद द कंडीशन इफ रेयरर मीडियम इज वैक्यूम। ये शर्त है, अगर ये शर्त पूरी होती है तो एब्सोल्यूट वर्ड लगाना। कोई बच्चे बोले सर अगर पानी से कांच में जाए तो एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लगाना? आंसर इज यस। कोई बच्चे बोले सर वैक्यूम से पानी में आए तो एब्सोल्यूट वर्ड लगाना है? I will say yes, refractive index, absolute refractive index of water with respect to vacuum. अगर वैक्यूम से कांच में आए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होता है। उसका रीजन मैं आपको पहले बता दिया था कि डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर हमेशा 1। ये नोट कर। आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। गेट एनर्जाइज्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, प्लीज गिव द इंडिकेशन टू द टीचर बाय वेविंग योर बोथ हैंड्स। शाबाश, इस तरह से मेरे को वेव करके बता दो कि अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया। बहुत अच्छा, थैंक यू। Very good morning, students. Good morning, sir. Good morning to all the teachers present. morning sir. And the students, so back after the India-Pakistan war. हाँ जी, कैसा रहा बच्चों आपके यहाँ पे? All safe? हाँ जी बच्चों, everything was fine? Yes. Right. चलिए, तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने टेस्ट पे। तो टेस्ट will be of real numbers and polynomial. Yes. Right. So students will be revising this topic and will be covering some questions from the previous year boards papers. Right जी? So I hope concept आप सब लोगों को आता है basic? Yes.
स्टूडेंट को किसी भी कॉन्सेप्ट में वेदर इट इज रियल नंबर और पॉलिनोमियल कोई भी डाउट हो तो प्लीज टेल मी। आप क्लियर है बच्चों? Yes. स्टूडेंट्स असाइनमेंट सब लोगों को मिल गई है? चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, दोनों टॉपिक्स पे मिक्स होंगे बच्चे, राइट? स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? ठीक है जी, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial. Polynomial is given px square plus qx plus 1. Form a quadratic polynomial whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta. Student, हमने जब टॉपिक कवर किया था, so we have done one question of this type, जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना था जिसके जीरोस थे 1 by alpha and 1 by beta. Now here the zeros are 2 by alpha and 2 by beta. अब हमें ये पॉलिनोमियल जो गिवन है इसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं बच्चे। व्हाट विल बी द सम ऑफ द जीरोस? प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द सम ऑफ द जीरोस। अगर जीरोस आर अल्फा एंड बीटा है तो आपके पास सम क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? बेटा माइनस बी अपॉन ए होता है। Yes. B is Q and A is P. So sum of the zeros क्या हो जाएगा बच्चों? Minus Q by P. What will be the product of the zeros? 1 by P. 1 by P. P. Now you have to find the polynomial whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta. Students, we know that अगर हमें sum and product of the zeros पता है तो can we form the polynomial? Yes. What will be the sum of, यहाँ पे s dash ले लेते हैं, sum क्या हो जाएगा बच्चों? by alpha plus, so what will be the value of this? पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम आ गया बच्चों अल्फा बीटा, Yes. and here it will be, right? Can we write this as is this step clear? Is this step clear or not बच्चों? Yes. Now we know that the value of alpha plus beta is minus q by p and the value of alpha beta is 1 by p. तो दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो क्या आपके पास 2 into minus q upon p over 1 by p. So p and p will be cancel out. तो सम कितना आ गया हमारे पास? minus 2q. What will be the product? प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों? फाइंड आउट कीजिए। ये वाला मैं पार्ट रब कर रहा हूँ बच्चों। What will be the product? It will be 2 by alpha multiplied by 2 by beta. Yes. So this becomes 4 upon alpha beta. What is the value of alpha beta? कितना आ गया आपके पास बच्चों? 4। तो आपके पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। कैन यू फॉर्म द इक्वेशन नाउ? टेल मी व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। प्लीज टेल मी बच्चों व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाउ। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? Minus sum x plus product. राइट? तो प्लीज जल्दी से फाइंड आउट कीजिए पॉलिनोमियल। बेटा सेक्शन बी थर्ड बेंच, सेक्शन बी लेफ्ट साइड थर्ड बेंच, ये जो ब्लू पाउच पड़ा हुआ है ना जिस स्टूडेंट के आगे,
Yes, please stand up. Yeah. Please come to the mic. Yes, sir. Have you understood the concept? Sir, yes. बट आप दूसरे स्टूडेंट की नोटबुक में चेक कर रहे थे क्या किया क्या नहीं किया। सर नो सर, सर देख के लिख रहे थे। वही तो मैं पूछ रहा ना, देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है बेटा? क्लियर नहीं हुआ? सर नो हो गया सर। फिर आप क्या करेंगे? आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का बताइए जल्दी से। क्या आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सर? वैल्यू पुट करेंगे। क्या क्या आंसर आएगा वैल्यू पुट करके? बताइए जल्दी से, बताइए खड़े खड़े। सर के एक्स स्क्वायर माइनस बोलो। के एक्स के। हैव यू नॉट अंडरस्टूड? मैम प्रेजेंट प्लीज चेक वेदर व्हाट द प्रॉब्लम ही इज फेसिंग। What is the sum of the roots? बेटा अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस रादर देन माइनस लुकिंग। 2 क्या? Then why are you not responding? Speak loudly. Substitute the value and tell to sir. बेटा देखिए सम हमारे पास क्या आया है? -2। माइनस 2 क्या? प्रोडक्ट आया 4p, तो 4p। और p को रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 2 क्या हुआ एक्स? हाँ जी आगे। प्लस 4p। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। राइट बच्चों, तो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 upon alpha and 2 upon beta. This is clear बच्चों? Yes. किसी भी स्टूडेंट को कोई स्टेप नहीं क्लियर हो, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। राइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। The zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6. The value of p is. Same type of question है students? Yes or no? Yes. Can you try this? बच्चों हो जाएगा? Yes or no? अगर आपको लगता है हो जाएगा प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों को लगता है कि हो जाएगा क्वेश्चन? I can't see even a single hand. स्टूडेंट सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। Now it is given to you that zeros of this polynomial are twice the zeros of this polynomial. But let the alpha and beta are the zeros of this polynomial. Please look at the board everyone. Now suppose the second polynomial which is given 4x square minus 5x minus 6. Let its zeros be alpha and beta. Now what will be the zeros of the second polynomial? X square plus px plus q. हाँ जी, 2 alpha and 2 beta. Now isn't this question the same type of the question which the previous one? बच्चे वहां पे क्या था? 2 upon alpha 2 upon beta. Now it is 2 alpha 2 beta. देखिए स्टूडेंट्स कैसे करना है। What will be the sum of alpha plus beta? Tell me. What will be the sum of alpha and beta? 5/4 Minus plus प्लस होगा बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। एंड व्हाट इज बी हियर? -5. सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय -5. सो दिस विल बी 5/4 व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस? -3/2 -2/4, राइट? और -3/2. Is it clear? Now we have to find the value of p, right? So what is the sum of the zeros of this polynomial? What is the sum? Is this clear? Is this clear or not? Yes.
Now can we take 2 common? Yes. Is equal to minus p. What is the value of alpha plus beta? 5 1. So this will be cancelled out. So what is the value of p? Minus 5 by 2. Yes. So our answer will be A choice. Is this clear students? देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी है, ये बोर्ड क्वेश्चन है, 2025 में आया है ये, राइट? अभी जो मार्च में एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन था वैसे। सबको क्लियर है जी? Yes. स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, assertion region क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Now question is given, if the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial. Tell me whether it is true or false. 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 Why? Because one can have at the most 2 zeros. Very good. Now the reason is given, a polynomial of degree n, where n is greater than 1, can have at most n zeros. This statement true? Yes. So now what will be the answer? B option. D option. D option आ जाएगा ना बच्चे, क्योंकि ये false है। आपका जो है assertion false है ना? Yes. So reason true है तो it will be D option. Is this clear? आवाज नहीं आई बेटा, क्लियर नहीं है ये आप सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन जी। Now please do this question yourself. Which of the following statement is true for a polynomial px of degree 3? Option. हाँ जी, which option? D option. D option. Px has at most 3 distinct zeros. Yes, it can have at the most 3 distinct zeros, right? So therefore, D option. look at the first option, at most 2. No, it can have 3 also. At least 2. No, it can have 1 also. Exactly 3. No, it can have 1 or 2. So therefore, D option is the correct option. Yes, students. Next question. Please do this question. अब तो ये आप कर सकते हो ना? If alpha and beta are the zeros of the polynomial 6x square minus 5x minus 4, then 1 by alpha plus 1 by beta. Same type of question. Please do it. Done. Very good. How many of you have done? Please raise your hand. One student only. Others also please do it. Done? Okay, Ji. Anji, please tell me, just a moment, let me ask someone. How many of you have done? Please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5. That's it. 5-6 बच्चों ने की है, बस सेक्शन बी वालों ने काफी ने की है। ए और सी में only 1 or 2 students I can see. Please, section A and C, do it fast. Teacher present, please make sure that every student do this question.
हाँ जी 10C हो गए स्टूडेंट्स, 10A एंड 10C। देखिए स्टूडेंट, जिन लोगों ने नहीं किया क्वेश्चन कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए। व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस? व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस? बेटा व्हाई यू आर टॉकिंग 10th बी फ्रंट बेंच स्टूडेंट? 5/6 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस minus minus 4/6. Now you have to Yes. multiply by alpha plus 1 by beta. Just solve this by taking LCM. alpha beta. Here alpha plus beta, alpha beta दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स हम। 5/6 So answer will be 5/4. minus 5/4. So this is B option, Yes. right students? Yes. बच्चे सारे क्वेश्चन देखिए सेम टाइप के आ रहे हैं आपके बोर्ड्स में पिछले सालों में। सो ओनली थिंग इज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चेंज कर दिया हुआ है, राइट? तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट करना आ गया तो एटलीस्ट आपका 1 मार्क तो कंप्लीट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a minus 1 x square plus ax plus 1 is minus 3, then the value of a is। प्लीज डू इट फास्ट स्टूडेंट्स, बहुत easy। Done. कितने लोगों ने कर लिया? कोई 4-5 करने वाले हैं, बाकी सब ऐसे ही बैठे हैं। सेक्शन ए और सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ जी सेक्शन सी, मिडल मिडल रो, सेकंड बेंच पे जो गर्ल स्टूडेंट, प्लीज स्टैंड अप। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम टू द माइक। हैव यू डन इट? Sir, no. व्हाई? हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू डू इट? यस और नो? Sir, no. व्हाई बेटा? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? Sit down. Who will explain me from section C this question? Who will explain me this question, students? What is the meaning of the zeros of a polynomial? If minus 3 is one of the zeros of this polynomial, then you just need to put this minus 3 in place of x everywhere and make this polynomial equal to 0 according to factor theorem. Do you remember factor theorem in class 9th we have done? Anybody can tell me what is factor theorem? If we have a polynomial px, right? If a is a zero of polynomial px, then p of a equal to 0. This is your factor theorem. बेटा जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोग बात कर रहे हो। 10th है, सेकंड बेंच, द सेंटर मोस्ट गर्ल स्टूडेंट्स। बच्चे आपको जब मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने बताया नहीं है। When I am explaining, you are talking with each other. Still you are talking. Please stand up. 10th and second bench, please stand up. Yeah. When I asked you about the factor theorem, you did not respond. Now you are talking. Please come to the mic. Sir, yes. Why you are talking, beta? Why you was talking when I was explaining? या तो बेटा जब मैं पूछ रहा हूँ आप मुझे बताइए। What is factor theorem? Sir, I have done the question. I have done that. That doesn't give you permit to talk, na? Does that give you the permit to talk freely?
बच्चे आपने कर लिया, आई अप्रिशिएट दैट, राइट, बट लेट अदर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। प्लीज सिट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर एक पॉलिनोमियल का जीरो है, तो इफ यू रिप्लेस दैट नंबर बाय द वेरिएबल, then polynomial should be zero. Now here, what is the polynomial? Polynomial is given a minus 1 x square plus ax plus 1. Now it is given that minus 3 is the zero of this quadratic polynomial, right? Then find the value of a. If minus 3 is zero of this polynomial, what does this mean? P of minus 3 will be equal to 0. Yes or no? Is this clear, बच्चों? Yes. X by minus 3. You replace x by minus 3. Is this clear? Now put this equation equal to 0 and find the value of a. Please do it, students. जो आपके पास इक्वेशन आ गई है यहाँ पे, इसको इक्वल टू 0 करके a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। Divided by 3. a की वैल्यू कितनी आ गई है? 4/3. चेक कर लेते हैं जी। इसको सॉल्व किया आपने, तो ये बन गया 9a minus 9 minus 3a plus 1 equal to 0, right? So this becomes 6a minus 8 equal to 0, and a will be equal to 8 by 6, that is 4 by 3. right, students? So it is C option. I think this question we have earlier also done in the assignment. Yes. जो असाइनमेंट बेटा मैंने आपको दी थी पहले पॉलिनोमियल्स पे, दिस क्वेश्चन वाज देयर इन दैट आल्सो, और वो असाइनमेंट का मैंने एक क्वेश्चन कवर किया था, एंड स्टिल यू पीपल हैव फॉरगॉटन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, यस, let x and y be two distinct prime numbers and p is equal to x square y cube, q is equal to x y4, r is equal to x raised to power 5 y square. Find the HCF and LCM of PQR. ये तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर लिया? डन, प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज, only one student in 10th है जिनका हैंड रेज है। 10C में only 2, that's it. What others are doing? Others also do it, please. कितने स्टूडेंट्स को आता है क्वेश्चन बेटा? जिन्होंने नहीं किया उनमें से हाउ मेनी नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? सो प्लीज डू इट बच्चों, फटाफट से कीजिए फिर। देखिए स्टूडेंट, जिन लोगों ने नहीं किया कैसे करना है क्वेश्चन को, आपको 3 नंबर्स गिवन है और उनके प्राइम फैक्टर्स भी गिवन है। नाउ p इज गिवन इक्वल टू x square y cube, q is given x y4, and r is equal to, right? Yes. Student, please understand carefully, very simple questions. Now whenever you have to find the HCF,
Just see what is the common value in all the three prime factorization. X and Y are in both the prime factorization of PQR. Now see what is the value, minimum value of X present in all the three. What is the minimum value of X? X. X to power 1, that is X. What is the minimum value of Y? Y square. So this is your HCF. Now whenever you have to find LCM, what is the maximum value of X? पर बेटा मैक्सिमम कितनी है? 6 तो नहीं है, 5 है बेटा. किसी बच्चे की आवाज आई थी 6. So x raised to power 5 maximum है. What is the maximum power of y? 4. So this is LCM and SCF. Now in the second part you have to check whether HCF into LCM is equal to the product of 3 or not. ये बच्चे आपने LCM और SCF का प्रोडक्ट ले लिया. What it comes out to be? This is the product of SCF and LCM. Yes or no? Now what will be the product of P into Q into R? You multiply all this. What will be the product of P, Q, R? Your all powers will be added up. 2 plus 1 plus 5. It will be x raised to power 8 into y raised to power. So what will be your answer? Not equal. Not equal. But we have done the product of SCF into LCM is equal to product of numbers. Number. And why it is not true? Because it is product of three numbers. That was the product of two numbers. But here the product of Three numbers. three numbers. So that condition is not applicable here. Is this clear? Yes. So we move to the next question, students. Yes, assertion reason J. 4 raised to power n ends with digit 0 for some natural number n. Is this true or false? False. Can anybody tell me why it is false? Because factor and 5 is not present. No, sabji mandi beta. Only one. कौन बताएगा? Please raise your hand. Raise your hands. हाँ जी बेटा, please tell me 10C से. That second bench, extreme left girl. Sir, because if any number can end with 0, it must have factors 2 and 5. Yes, please sit down जी. किसी और को तो बता किसी और ने दी. Anyway, see students, please sit down. See, we have 4 raised to power n. What will be the prime factorization of 4? Any number can have or can end with 0. It can have the digit 0 at the units place if and only if it has prime factors of 2 and 5. Since 4 raised to power n has prime factors 2 but does not have, else it will not end with, Zero. right? So therefore this is False. now next reason for a number x having 2 and 5 as its prime factors. X raised to power n always ends with digit 0 for every natural number. True. This is true. So therefore answer is B option. option. Yes, next question, students. For what value of k the product of the zeros of the polynomial is 2? Please do it fast. Please do it. How many of you have done? Again, only few students. 10th C वाले लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. एक दो बच्चों को छोड़ के nobody is doing anything. हाँ जी बच्चों.
For what value of k the product of the zeros is 2? Who will explain me? Please raise your hand. सेक्शन सी से 10C फ्रंट बेंच पे जो स्टूडेंट जिनके पास माइक रखा है ना, प्लीज एक्सप्लेन. So firstly, we have to put the value of x. हाँ जी. वैल्यू ऑफ So the value of x is 2. Sir, k 2 square minus. no beta, no. You have just copy paste the previous question without understanding this question. This question is different question, students. What is given to you? The product of the zeros of the polynomial. Is it given here कि 2 is the one of the zeros? Try to understand the difference between the language of the question. The previous question was, if -3 is one of the zeros of the polynomial, then find the value of a. Here the question is, find the value of k if the product of the zeros. Now, if this is the polynomial, please sit down, student. If this is the polynomial, what is the product of the zeros? -7 by, and this is equal to 2. So this is the way to do this question, student. Is this clear? Yes. Please read the question carefully. ठीक है ना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, लर्न करके नहीं जाना बच्चों कि ये क्वेश्चन अच्छा इस तरह से किया था, के वाला ए वाला ऐसे कर दो. नो, देयर मस्ट बी स्मॉल ट्विस्ट इन द क्वेश्चंस. राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? किसी भी स्टूडेंट को नहीं क्लियर हुआ कुछ तो प्लीज आस्क. ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -7 by 2. राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी किया था हमने. If two positive integer p and q can be expressed as 18a square b4 and q is equal to 20aq b square, where a and b are prime numbers, LCM find out करना है स्टूडेंट्स. LCM फाइंड आउट करना है जी. डन. कितने बच्चों ने कर लिया? ऑप्शन तो मैंने पूछी नहीं बेटा, मैंने ये पूछा कि हाँ जी. सेक्शन ए से कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स. सेक्शन ए में फ्रंट बेंच पे जो बॉय बैठा है वो बताएगा. खड़ा हो जाए. फ्रंट बेंच बॉय, प्लीज एक्सप्लेन बेटा हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. क्या? और वही सारे सर रिपीट कर रहे हैं. सेकंड चैप्टर की वर्कशीट रेडी है. हाँ जी बेटा. सर डी ऑप्शन. नहीं, ऑप्शन तो आ गया, डी पर कैसे आया वो एक्सप्लेन करना. प्लीज एक्सप्लेन मी. लुक एट द स्क्रीन, डोंट लुक हियर एंड देयर. हाँ जी, मेरी तरफ देखो जरा. क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इधर देखो जरा. नो नीड टू लुक हियर एंड देयर, जस्ट लुक एट द स्क्रीन. बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर. मेरी तरफ देख के बात करें आप. टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. सर कर रहे थे अभी. आंसर कैसे बता दिया बच्चा आपने? सर जी, अगर आप कर रहे थे तो फिर आंसर कैसे बता दिया आपने? सिट डाउन. हाँ जी, कौन बताएगा और सेक्शन ए से? सबसे लास्ट में जो गर्ल स्टूडेंट बैठे हैं वो आ जाएगा लास्ट बेंच पे. बेटा सेम क्वेश्चन वी आर डूइंग इट टाइम एंड अगेन. Sir, डन इट. sir, yes. प्लीज टेल मी बच्चे हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम. Sir, factors of 18, 2, 3, 3, वेरी गुड. factors of 20, हाँ जी.
ये लो मैंने आपके लिए कर दिया ये। आगे बोलिए। सर LCM 180 आया। दोनों का एलसीएम 118 आया, 80 आया, सॉरी। 180। चलिए, हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें तो बेटा पूरे नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है, दिस एंड दिस। p की वैल्यू गिवन है आपको 18 a स्क्वायर b4 एंड q इज गिवन 20 a क्यूब b स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया बच्चों? सर 180 A3 into B4। हाँ जी, तो यहाँ दोनों का एलसीएम आ गया 180। यस। So means the LCM of these two is 180. What will be the LCM of these a square b4 and a cube b square? दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है? A3 and B4 a3 b4. So this will be the LCM। LCM. So कौन सी ऑप्शन आएगी बच्चों? The option. The option, right? Please sit down. So first you have to do prime factors of 20 and 80 because बाकी तो prime factors given है a and b, right? So then you have to find the LCM of the entire numbers. Next question देखिए बच्चों. Right. So we have finished this assignment. आपके पास exercise जो given है assignment, उसमें एक question और है 11th question. There are 10 questions. 10. Only 10 questions are there. Yes. क्वेश्चन और है बच्चे, वो हम करते हैं, जरा देखिए। तो यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन इफ x इज इक्वल ab क्यूब। Sir, second period has started. ओके बच्चों, तो व्हेन इज योर टेस्ट? Sir, tomorrow. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बड़े ध्यान से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टूडेंट्स। So thank you very much to all the students and teacher present.